بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر نہ کرو، اب یہ صرف ہماری مرضی سے ہی ہوش میں آ سکے گا، صدیقی نے کہا اور چوہان نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ عمران ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر اس واقعے کے متعلق سوچ رہا تھا جس میں کسی نقلی طاہر نے سلیمان کو بڑی خوبصورتی سے اپنا آلائے کار بنا کر اسے عجیب و غریب چکر میں ڈال دیا تھا۔ طاہر شادی سے واپس آ چکا تھا اور اس کے مطابق وہ پرنسپل جس پر طاہر بننے کا شک کیا گیا تھا اسے اس نے پوری طرح چیک کر لیا۔ اسے اس سارے معاملے کا کوئی علم نہ تھا، بس اتنا معلوم ہوا کہ اس نے اس کا ذکر وہی موجود چند غیر ملکیوں سے کیا تھا۔ ان غیر ملکیوں کے متعلق معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس کی دعوت پر شادی میں شریک ہوئے تھے اور پھر واپس کہاں چلے گئے۔ فوٹو کھینچنے والی بات بھی صرف عمران کی اپنی سوچ تھی، لیکن اس معاملے کو 2-3 روز گزر چکے تھے اور ابھی تک ایسا کوئی فوٹو سامنے نہ آیا اور نہ ہی کسی نے اس معاملے میں اس سے کوئی بات چیت کی تھی۔ اس لیے ایک لحاظ سے یہ عجیب و غریب واقعہ ایک طلسم و شوربہ جیسی حیثیت اختیار کر گیا جس کا کوئی سر پیر، کوئی مقصد کسی بھی طرح سامنے نہ آ رہا تھا۔ یہی الجھن اس وقت بھی اس کے ذہن میں کسی کن کھجورے کی طرح رینگ رہی تھی۔ کیا ہر اس حیرت انگیز واقعے کا اصل مقصد کیا تھا اور کس نے یہ حیرت انگیز ڈرامہ رچایا اور کیوں؟ لیکن یہ واقعہ اس قدر عجیب و غریب تھا کہ کسی طرح بھی اس کا کوئی سر پیر عمران کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی عمران اس ذہنی الجھن میں تھا کہ کال بیل بجنے کی آواز سنائی اور عمران چونک پڑا۔ سلیمان دیکھو کون آیا ہے صبح صبح؟ عمران کے لہجے میں سنجیدگی تھی، اسی لیے سلیمان خاموشی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا یہی علی عمران صاحب کا فلیٹ ہے؟ ہم ان کے لیے ایک خصوصی پیغام لے کر آئے ہیں۔ ایک اجنبی آواز سنائی تھی لیکن لہجہ غیر ملکی تھا۔ جی ہاں موجود ہیں، آئیے، سلیمان نے سنجیدگی سے جواب دیا اور پھر قدموں کی آواز ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ عمران ہاتھ میں موجود چائے کی پیالی رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ذہن میں فوراً ہی یہی خیال بجلی کے کوندے کی طرح چمکا کہ وہ جس معاملے کے بارے میں سوچ رہا ہے یہ غیر ملکی یقیناً اس معاملے کے سلسلہ میں آئے ہیں۔ اسے اس سوچ پر ایک عجیب سی راحت محسوس ہوئی، جیسے اس کے ذہن پر موجود بے پناہ دباؤ میں اچانک کافی حد تک کمی آ گئی ہو۔ جناب، 2 غیر ملکی آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، سلیمان نے دروازے پر رک کر سنجیدہ لہجے میں کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ تیز قدم اٹھاتا اپنے اس کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کا ذہن پہلے سے کافی ہلکا ہو گیا تھا لیکن بہرحال ابھی تک اس پر خاصا دباؤ تھا، اس لیے اس کے چہرے پر سنجیدگی ابھی تک موجود تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس نے سامنے صوفوں پر 2 غیر ملکیوں کو اطمینان سے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جبکہ دوسرا قد و قامت میں اس جیسا تھا اور نوجوان تھے، لیکن ان دونوں کی آنکھوں میں ذہانت کی بھرپور چمک موجود تھی۔ مجھے علی عمران کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں علی عمران کیوں نہیں کہتے، اس کا فیصلہ میں آج تک نہیں کر سکا۔ سنجیدگی کے باوجود عمران کی زبان خود بخود چل پڑی، شاید اب وہ فطرتاً ایسی باتیں کہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ میرا نام ہومر ہے اور یہ پروفیسر اسکاٹ ہے، اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے چہرے پر دوستانہ جذبات پوری طرح نمایاں تھے، لیکن دوسرے لمحے عمران نے جیسے ہومر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اس کی ہتھیلی میں تیز چبھن سی محسوس ہوئی، جیسے کسی کپڑے نے اچانک ڈنگ مار دیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن اس قدر تیزی سے تاریک ہو گیا جیسے کیمرے کا شٹر پلک جھپکنے سے پہلے ہی بند ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے گھوپ اندھیرے میں اچانک کوئی جگنو چمکتا ہے، اس طرح عمران کے ذہن میں روشنی کا نقطہ پیدا ہوا اور پھر وہ نقطہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں، لیکن اس کے ساتھ اس کے سر میں دائیں طرف درد کی ایک تیز لہر بھی دوڑ گئی۔ عمران کا ہاتھ بے احتیاط اس جگہ پر جا رکا۔ ہاتھ رکھنے سے اسے خاصا درد محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تک یہ سارا کام وہ لاشعوری طور پر کر رہا تھا، لیکن پھر جس طرح اچانک بجلی کا جھٹکا لگتا ہے اس طرح اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور اس کا شعور جاگ پڑا۔ دوسرے لمحے اس کا جسم یکوقت اس طرح خود بخود سمٹ گیا جیسے کوئی نوجوان لڑکی اپنے جسم کو اچانک سمیٹ لیتی ہے جب اسے کوئی کسی بات پر شرم آنے لگتی ہے۔ او اللہ، اگر سلیمان ہمیں اس عالم میں دیکھ لیتا تو؟ عمران کی زبان سے خود بخود یہ الفاظ نکلے اور اس کے ساتھ اس نے جلدی سے اپنے جسم کو ایک بار پھر اس طرح سمیٹا جیسے وہ لباس پہنے ہوئے نہ ہو، اور وہ سمٹ کر صوفوں میں اس طرح بیٹھ گئے جیسے کسی سے چھپ رہا ہو۔ وہ غیر ملکی، وہ کہاں گئے؟ کیا وہ چلے گئے؟ مگر اچانک عمران کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا اور وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کون تھے؟ کیا کر گئے ہیں؟ اور وہ میرے ہاتھ میں چبھن؟ عمران کو بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر یاد آ گیا اور وہ تیزی سے ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف لپکنے ہی لگا کہ یکلک ٹھٹک کر رک گیا۔ اوہ ماں، اس طرح لپکنا تو اچھا نہیں ہوتا، سمٹ کر چلنا چاہیے۔ عمران کی زبان سے ایک بار پھر الفاظ خود بخود پھیل گئے، اس کے ساتھ اس کا تیزی سے لپکتا ہوا جسم یکلک ٹھٹک کر رکا اور پھر ناقطہدہ لڑکیوں کی طرح سمٹ گیا، اور پھر وہ واقعی اسی طرح سمٹے ہوئے انداز میں چلتا ہوا راہداری میں آ گیا۔ دوسرے لمحے اسے سامنے کی راہداری میں سلیمان اوندھے منہ پڑا نظر آیا۔ وہ ایک بار پھر بجلی کی سی تیزی سے سلیمان کی طرف لپکا، اس نے جھٹکے سے اسے سیدھا کیا۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے اطمینان بھرا سانس نکل گیا کیونکہ سلیمان صرف بے ہوش تھا۔ لمحے اس کے منہ سے اطمینان بھرا طویل سانس نکل گیا۔ عمران نے اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد سلیمان کی جسم میں حرکت سی پیدا ہوئی، پھر یہ حرکت تیز ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی، پھر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ صاحب، سلیمان نے اپنے سامنے کھڑے عمران کو دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صاحب، تمہیں شرم نہیں آتی؟
हमें साहब कहते हुए? तुम इस तरह नदीदों की तरह हमें घूर क्यों रहे हो? शर्म करो। इमरान की ज़ुबान से खुद बहुत ये अल्फाज निकले। उसके साथ ही ना सिर्फ इमरान के जिस्म एक बार फिर सिमट सा गया, बल्कि उसके चेहरे पर शर्म के शदीद आसार उभर आए और उसने नौजवान लड़कियों की तरह मुंह एक तरफ कर लिया। क्या मतलब? क्या ये कोई नया ड्रामा है साहब? मैं चाय का पूछने आ रहा था कि एक गैर मुल्की ड्राइंग रूम से आया। उसके साथ ही मेरी नाक पर कोई गुब्बारा सा फूटा और फिर मुझे होश ही ना रहा। सुलेमान ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, इसका मतलब है कि ये दोनों गैर मुल्की किसी खास मिशन पर आए थे। ठहरो, मैं ज़रा गायकर से चेक कर लूँ। इमरान ने यकलत अपने असल लहजे में कहा, फिर तेजी से अपने खास कमरे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन दूसरे लम्हे वो यूँ ठटक कर रुक गए जैसे चाबी वाले खिलौने की चाबी अचानक ख़त्म हो जाती है। हाय अल्लाह, तुम फिर नदीदों की तरह हमें देख रहे हो, और ये तुमने हमें मर्दानी कपड़े क्यों पहना रखे हैं? हमें शर्म आती है इस लिबास में। इमरान की ज़ुबान से एक बार फिर ये अल्फाज निकले। उसके साथ ही वो लजाता हुआ और उठलाता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ और सीधा ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसने पलट कर भी सुलेमान की तरफ ना देखा, जो हैरत से आंखें फाड़े खड़ा उसे देख रहा था। लेकिन इसके बावजूद इमरान को ऐसे महसूस हुआ जैसे सुलेमान की निगाहें किसी केंचुआ की तरह उसकी पुष्ट पर रेंग रही है। बड़ा बेशर्म और नदीदा है ये सुलेमान, हमें किस तरह घूर रहा है जैसे नज़रों ही नज़रों में खा जाएगा। इमरान ने ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते ही लाशौरी तौर पर बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने बाकायदा ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और एक तरफ मौजूद बड़ी सी अलमारी की तरफ बढ़ गया। उस अलमारी में मुख्तलिफ डिज़ाइनों के ज़नाने लिबास मौजूद थे। ये लिबास सिर्फ इमरान ने खास मौक़ों के लिए बनवा कर रखे थे। वैसे आज तक उनके इस्तेमाल की कभी नौबत ना आई थी, लेकिन अब ये लिबास उसे बेहद पसंद आ रहे थे, ऐसे जैसे ये उसके पसंदीदा लिबास हो। फिर उसने एक सुरख रंग का और रेशमी कपड़े का बना हुआ फूलदार सूट निकाला, जिसके साथ बाकायदा किरण लगा हुआ रेशमी दुपट्टा भी मौजूद था। उसने लिबास उठाया और हाथ बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने बाथरूम की बत्ती बंद कर दी और फिर जिस्म पर मौजूद लिबास इसी तरह उतारने लगा जैसे ये लिबास न जाने क्यों उसकी जिस्म पर मौजूद था। उसे बत्ती जलाते हुए शर्म आ रही थी। उसके रोशनदान से आने वाली हल्की सी रोशनी में उसने जिस्म पर मौजूद मर्दानी कपड़े उतारे, फिर सूट रंग का रेशमी जोड़ा पहनकर बाहर आ गया। बाकायदा मशरकी लड़कियों की तरह किरण लगा हुआ रेशमी दुपट्टा उसके जिस्म पर लिपट लिया। वाह, किस कदर खूबसूरत लिबास है। अरे मगर ये हमारा क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। इमरान ने बाथरूम के आईने में अपने आप को देखते हुए कहा, वो हमें हल्का सा मेकअप करना चाहिए। इमरान ने लिबास को आईने में देखकर दुरुस्त करते हुए कहा। फिर वो उठलाता हुआ और लड़कियों के अंदाज में चलता हुआ बाथरूम से निकलकर ड्रेसिंग रूम में आ गया। उसी अलमारी के निचले खाने में एक लेडीज़ मेकअप बॉक्स भी मौजूद था। उसने वो बॉक्स उठा लिया। हाय अल्लाह, कितनी मिट्टी पड़ी है इस बॉक्स पर, इमरान ने उछलाते हुए अंदाज में कहा। और फिर एक तरफ पड़ा हुआ मैला कपड़ा, उसने बड़ी नफासत से बॉक्स को साफ़ किया और फिर उसे लेकर वो दोबारा बाथरूम में आया। उसने बॉक्स खोला और फिर उसमें मौजूद लिपस्टिक के मुख्तलिफ शेड्स में एक शेड निकालकर उसने अपने होंठों पर बड़ी नफासत से लिपस्टिक लगानी शुरू कर दी। लिपस्टिक से उसके सुरख होंठ और भी ज़्यादा सुर्ख और खूबसूरत नज़र आने लगे। उसके बाद उसने बाकायदा गालों पर पफ लगाया, फ्लशेस के टचेस लगाया, आंखों में सुरमा ना सिर्फ डाला बल्कि उसके लकीरें भी साइडों पर दुम्बाली की तरह बाहर को खींची और आंखों पर एक खूबसूरत आई शेड लगा लिया। वाह, अब कुछ शक्ल तो बनी। हाँ, वहाँ मर्दों जैसी शक्ल बना रखी थी। हाँ, इमरान ने मुड़ते हुए कहा। चूँकि वो सुबह शेव बना चुका था इसलिए उसके गाल इस वक्त बिल्कुल नर्म थे, औरतों की तरह। इमरान बॉक्स बंद करने ही लगा था कि यकलख्त उसके खाने में मौजूद ज्वेलरी देखकर चौंक पड़ा। अरे वाह, किस कदर खूबसूरत ज्वेलरी है। इमरान की ज़ुबान से खुद ब खुद निकला और उसने खूबसूरत टॉप्स की जोड़ी उठाई जिसमें खूबसूरत जरकोन जुड़े हुए थे और उन्हें कानों में लगाकर दबाया तो टॉप्स कानों के किनारे पर फिक्स हो गए। एक खूबसूरत सा लॉकेट उठाकर उसने गले में पहना, फिर शीशे में अपने आप को देखने लगा। उसके लबों पर खुद बहुत ऐसी मुस्कुराहट फैल गई जैसे उसे अपना ये सिरापा बेहद पसंद आया और उसने बॉक्स बंद करके उसे दोबारा अलमारी में रखा और फिर ड्राइंग रूम में आकर उसने दरवाज़ा खोला और कमरे में आ गया। उसी लम्हे उसे दरवाजे पर खड़ा सुलेमान दिखाई दे, जिसका चेहरा हैरत की शिद्दत से पत्थर हो रहा था और आंखें इस तरह खुली हुई थी और साकित थी जैसे उसे सकता हो गया हो। हाय अल्लाह, कितनी बार कहा कि हमें इस तरह ना देखा करो, हम अम्मा भी से तुम्हारी शिकायत करेंगे, इमरान ने लजाते हुए कहा। और सुलेमान के होंठ यकलख्त भींच कर उसके चेहरे पर जलजले के से आसार उभरे। इसका मतलब है बड़ी बेगम साहिबा का शोभा दुरुस्त था, आप पर यकीनन किसी परी का साया हो गया है, सुलेमान ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तेज़ी से वापस मुड़ गया। हम खुद क्या किसी परी से कम हैं? अल्लाह रखे हमारे हुस्न को, हमारे हुस्न के सामने परी क्या हैसियत रखती है। इमरान ने लजाते शर्माते हुए लहजे में कहा। सिमट कर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसी लम्हे सामने पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। जी फरमाइए, इमरान ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। इमरान साहब, मैं ताहिर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से ताहिर की आवाज़ सुनाई, जिसके लहजे में हल्की सी हैरत मौजूद थी। शायद ये हैरत इमरान के बदले हुए अंदाज की वजह से थी, लेकिन उसने उसका इजहार ना किया। आखिर आप लोग हमें ज़बरदस्ती क्यों मर्द बनाने पर तुले हुए हैं? जब हम कह रहे हैं कि हम मर्द नहीं हो सकते तो फिर हमारे नाम के साथ साहब क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या आप हमें मिस इमरान कह सकते हैं प्लीज़? ताहिर साहब, आइंदा आप मोहतात रहा करें। और अब फरमाइए, आपने किस मकसद के लिए फ़ोन करने की जहमत की है? नदीदा सुलेमान ना जाने कहाँ मर गया जो हमें फ़ोन सुनना पड़ रहा है। हमें तो शर्म आती है गैर मर्दों का फ़ोन सुनते हुए, लेकिन मजबूरी है।
इमरान ने उसी तरह लाड भरे मगर शिकायती लहजे में कहा, इमरान साहब अभी तक आपके जहन पर उसी वाक़े का असर मौजूद है शायद। मैंने भी इसी सिलसिला में फ़ोन किया था कि अभी तक उन गैर मुल्कियों की तलाश नहीं की है जासका जो दावत में शरीक थे और उनके सामने प्रिंसिपल उल्फत हुसैन ने बात की थी। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने संजीदा लहजे में कहा, क्यों क्या कहा, जाहिर है उसने यही समझा होगा कि इमरान उसे तंग करने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। फिर वही साहब प्लीज़, हमने कहा नहीं, हमें साहब ना कहा करें, हमें शर्म आती है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके साथ ही उसने इस तरह रिसीवर रख दी जैसे उसे ब्लैक ज़ीरो की दोबारा साहब कहने पर बुरी तरह गुस्सा आ गया हो। आहा न जाने इन मर्दों के दिमाग में क्या कीड़ा रिंगा है कि ज़बरदस्ती हमें मर्द बनाना चाहते हैं। हम क्यों बने मर्द, आहा वैशियों ने दीदी, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और दोबारा सिमट कर कुर्सी में बैठ गया। हमें यूँ फारिग नहीं बैठना चाहिए, दादी अम्मा कहती है फारिग लड़कियों के दिमाग में शैतान घुस जाता है, लेकिन अब हम क्या करें। ये सुलेमान भी ना जाने कहाँ चला गया, कम अज़ कम ओन की गोली और सिलाइयाँ ही ला देता, हम अपना एक खूबसूरत सा स्वेटर ही बुन लेते। अरे हाँ, आज के अखबार में स्वेटर का बड़ा खूबसूरत नमूना छुपा है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और चौंक कर उसने सामने मेज़ पर पड़ा हुआ अखबार उठाया और उसे बड़ी नज़ाकत से खोलकर देखने लगा। इसमें वाकई खवातीन मैगज़ीन के नाम पर 2 सफ़ात शाया होते हुए थे, जिनमें से एक पर स्वेटर का नया नमूना और उसकी बनाई गई तरकीब की तफसील मौजूद थी। इमरान गौर से उस तरकीब देखने लगा। 3 सिलाइयाँ उल्टी और 2 सीधी, 4 उल्टी 2 सीधी, कुछ इस किस्म की तफसील थी। वाह वाह, वाकई खूबसूरत नमूना है, उल्टा भी है सीधा भी, उल्टा ज़्यादा है सीधा कम है, ज़माना भी तो उल्टा आ गया, इसलिए ये उल्टा ज़्यादा और सीधा कम स्वेटर यकीनन आजकल के ज़माने का है। इसका मतलब हुआ जदीद और हम ज़रूर बुनेंगे ये स्वेटर, इमरान ने हास अंदाज से सर हिलाते हुए कहा। अभी इमरान स्वेटर के इस उल्टे सीधे नमूने पर गौर फिक्र कर ही रहा था कि उसे फ्लैट का दरवाज़ा एक धमाके से खुलने की आवाज़ सुनाई दी और इमरान बेएहतियात चौंक पड़ा। आहा, कोई मर्द ही आया होगा, वही इस वहशियाना अंदाज में दरवाज़ा खोलते हैं, जंगली वहशी बदहलाक नदीदे। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, वो है कहाँ मुझे बताओ, मैं उस नामुराद परी की आंखें निकाल लूँगी। उसको सारी दुनिया में ही मेरा ही बच्चा नजर आया था। अम्मा भी की हामती हुई तेज़ आवाज़ सुनाई। इमरान घबरा कर उठा, अखबार उसके हाथ से नीचे गिर गया। दूसरे लम्हे अम्मा भी और उसके पीछे सुरैया कमरे में दाखिल हुई। हुक्म में सुलेमान का चेहरा नजर आ रहा था, उसके चेहरे पर वाकई हवाइयाँ उड़ रही थी। है ये क्या, ये तो सचमुच लड़की बना खड़ा है। अम्मा भी की आंखें इमरान को खूबसूरत सुर्ख रेशमी जोड़े में देखकर हैरत से फटी की फटी रह गई और उसी लम्हे सुरैया के हलक से जोरदार कहा निकला, वाह भाईजान, बहुत खूब, वाह इसे कहते हैं रूप धारना, लुत्फ आ गया फैंसी ड्रेस शो का। सुरैया ने बुरी तरह हंसते हुए कहा। वो बुरी तरह हंस रही थी कि जैसे सारी ज़िंदगी के हंसने का कोटा इकट्ठा ही ख़त्म कर लेना चाहती हो। मगर दूसरे लम्हे अम्मा भी हाय मेरा इमरान कहते हुए लहराई और आगे पीछे खड़े हुए सुलेमान ने बल्कि रफ्तारी से अम्मा बी को संभाल ना लिया होता तो वो यकीनन धड़ाम से नीचे गिरकर अपने आप को जख्मी कर लेती। सुरैया भी अम्मा बी की हालत देखकर हंसना भूल गई। हाय अल्लाह, अम्मा बी को क्या हो गया। इमरान भी तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन उसका बोलने का और चलने का अंदाज हालिस्तन निस्वानी था। अम्मा बी बेहोश हो चुकी थी और सुलेमान ने उन्हें बड़े एहतराम से संभाल कर सोफे पर लेटा दिया और जल्दी से पानी लेने के लिए बाथरूम की तरफ भागा। अम्मा बी, आपको क्या हो गया। सुरैया ने बेएहतियात माँ को झंझोड़ना शुरू कर दिया। अरे अरे सुरैया, ये क्या कर रही हो, इस तरह तो अम्मा बी की तबीयत बिगड़ जाएगी, ठहरो हम हवा देते हैं, इमरान ने कहा और जल्दी से उसे अपने सर पर लिपटा हुआ दुपट्टा पकड़कर उसने इससे अम्मा बी के चेहरे पर हवा देनी शुरू कर दी। दूसरे लम्हे सुलेमान वापस लौटा और उसने हाथ में पकड़े हुए ग्लास में से पानी हथेली पर उंडेला और अम्मा बी के चेहरे पर छींटे मारने शुरू कर दी। छींटों का असर वाकई हैरत अंगेज साबित हुआ और अम्मा भी होश में आ गई। खुदा का शुक्र है, अल्लाह मियाँ ने हमारी दुआएं सुन ली, इमरान ने इत्मीनान तवील सांस लेते हुए कहा और फिर पीछे हटकर कालीन पर इस तरह सिमट कर बैठ गया जैसे वो वाकई कोई लड़की। उसके बैठने का अंदाज हालिस्तान निस्वानी था। हाय मेरी किस्मत, अल्लाह ने एक ही बेटा दिया, वो भी लड़की बन गया, हाय मेरी किस्मत। अम्मा बी ने बेएहतियात दोनों हाथों में सर पकड़कर कराहते हुए कहा, अम्मा बी ये इमरान भाई नाटक कर रहे हैं, उसे ड्रेस क्यों कहते हैं अम्मा बी। सुरैया ने जल्दी से खुद को संभालने के साथ साथ उन्हें समझाना शुरू कर दिया। क्या कह रही हो, नाटक। अरे हाँ, हमारे ज़माने में वाकई नाटक में मर्द औरतों का लिबास पहनकर नाटक किया करते थे। ओ मगर क्या ज़रूरत है इस नाटक करने की, क्या बाप की इज्जत इसी तरह डबोएगा, क्यों बे। अम्मा भी की हालत यकलहत बदल गई। दूसरे में उन्होंने तेज़ी से जूती अपने पैर से उतारी, फिर सामने नीचे कालीन पर बैठे हुए इमरान के सर पर तड़ातड़ जूतियाँ बरसानी शुरू कर दी। अब उनके चेहरे पर बेपनाह गुस्सा और जलाल था। ओई अल्लाह, हाय अल्लाह, अम्मा भी हमें ना मारे। इमरान की ज़ुबान से बेएहतियात अल्फाज निकलने लगे। है अभी तक वही नाटक, ठहरो आज मैं तुम्हारी ये खोपड़ी पिलपिली करके ही छोड़ूंगी। तुम्हारी ये जुर्रत कि माँ से भी नाटक करो।
अम्मा भी को और ज़्यादा जलाल आ गया और फिर तो उनकी जूतियों में इस कदर तेज़ी आ गई कि जैसे वो बूढ़ी और बीमार ना हो, इंतहाई ताकतवर हो, और ये ताकत उनके गुस्से की थी। सुरैया और सुलेमान टिक टिक दीदम दम नाकशीदम के मज़दाक खामोश थे, क्योंकि अम्मा भी के चेहरे पर जो गुस्सा और जलाल था उसने उनके जहनों और जिस्मों को जैसे सुन करके रख दिया था। नालायक, बदतमीज़, माँ से नाटक करता है। अम्मा भी का गुस्सा लम्हा व लम्हा बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक इमरान के मुँह से हल्की सी चीख निकली और वो यकलौत पहलू के बल ज़मीन पर गिरा और साकत हो गया। और नाटक करता है और नाटक। अम्मा भी को और जलाल आ गया, लेकिन उसी लम्हे सुरैया को जैसे होश आ गया। उसने जल्दी से अम्मा भी का हाथ पकड़ा। अम्मा भी, भाई इमरान बेहोश हो गए हैं। सुरैया ने जल्दी और तेज़ लहजे में कहा, बेहोश नहीं, ये नाटक कर रहा है। आज मैं इसका सारा नाटक इन जूतियों से ख़त्म कर दूंगी। अम्मा भी इसी तरह गुस्से और जलाल में थी। बेगम साहिबा, साहब वाकई बेहोश हो गए हैं। सुलेमान ने जल्दी से आगे बढ़कर इमरान को सीधा करते हुए कहा, हाँ वाकई बेहोश हो चुका है। हाय मेरा बेटा, मेरा इमरान। अम्मा भी के मुंह से यकलहत कराह से निकली और फिर वो सुरैया के बाजों में ही झूल गई। वो फिर बेहोश हो गई। जल्दी अंकल, डॉक्टर को बुलाओ। सुलेमान, जल्दी करो। सुरैया ने बुरी तरह बदहवास होते और चीखते हुए कहा, घबराए नहीं, अभी उन्हें होश आ जाएगा। घबराए नहीं, अभी इन्हें होश आ जाएगा। सुलेमान ने इमरान को छोड़कर जल्दी से एक तरफ तपाई पर रखा और ग्लास उठाया। और इस बार उसने दोनों के चेहरों पर ये के बाद दिगरे छींटे मारने शुरू कर दिए। छींटों का असर इस बार भी वैसे ही हैरत अंगेज निकला और उन दोनों के चेहरों की कैफियत बदलने लगी। लेकिन फिर अम्मा बी से पहले इमरान की आंखें खुली और दूसरे लम्हे वो यकना उछल कर बैठ गया। उसकी आंखों पर अजीब सी चमक लगी। अरे अम्मा बी, सुरैया, अम्मा बी को क्या हुआ? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उस लम्हे अम्मा बी को होश आ गया और वो उठने लगी। हाय मेरा बच्चा, ये मैंने क्या कर दिया? अम्मा बी ने होश में आते ही चीखते हुए कहा, अम्मा बी क्या हो गया आपको? और सुलेमान, डॉक्टर को बुलाओ। इमरान ने बुरी तरह से घबराए हुए लहजे में कहा। अम्मा बी को संभालना शुरू कर दिया। खुदाया तेरा शुक्र है, मेरे बेटे को होश आ गया। अम्मा बी ने जब इमरान को होश में देखा तो वहीं सोफे पर ही बेएहतियात सड्डे में गिर गई। अरे ये क्या, ये लिबास ला हौला वला कुव्वता, क्या मतलब? उसी लम्हे अचानक इमरान की नज़रें अपने लिबास पर पड़ी और वो वाकई बौखलाहट में बुरी तरह नाट सा गया। उसके चेहरे और आंखों में शदीद तरीन हैरत के आसार उभर आए। अब बंद भी करें क्या ये नाटक भाईजान, जाएं जाकर लिबास बदल लें। सुरैया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। वो यही समझी थी कि इमरान की ये हैरत भी उस नाटक का ही कोई हिस्सा है। नाटक क्या मतलब? मगर ये लिबास ला हौला वला कुव्वता। तुम अम्मा भी का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। इमरान ने इस बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा कि सुरैया बेहरान होकर इमरान के चेहरे को देखने लगी, जो पागलों के अंदाज में दौड़ता हुआ ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। सुर्ख पहाड़ी के दामन में मौजूद पुराना रेस्ट हाउस किसी मुफलिस की जेब की तरह बिल्कुल ही वीरान और खाली पड़ा हुआ था। चौहान सिद्दीकी दो मुख्तलिफ रास्तों से बड़े मोहतात अंदाज में इसमें दाखिल हुए, लेकिन वहाँ मौजूद महसूस किस्म का सन्नाटा और वीरानी ने उन्हें पहले ही लम्हे में बता दिया कि रेस्ट हाउस खाली है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़े मोहतात अंदाज में सारे रेस्ट हाउस की तलाशी ली। गो वहाँ ऐसे आसार मौजूद थे कि यहाँ चंद रोज़ कबल कई आदमी मौजूद रहे हैं, लेकिन इस वक्त वहाँ ना सही किसी किस्म का कोई सामान मौजूद था और ना ही कोई आदमी। तुम जाकर नुमानी को ले आओ ताकि अब यहाँ रॉबर्ट से इत्मीनान से पूछगछ हो सके, चौहान ने कहा। और सिद्दीकी सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद वो सिद्दीकी जब वापस आया तो उसके कंधे पर बेहोश रॉबर्ट लदा हुआ था। नुमानी भी उसका साथी ही था। नुमानी के हाथ में एक ब्रीफ केस भी मौजूद था और एक रस्सी का गुच्छा भी। सिद्दीकी ने बेहोश रॉबर्ट को वहीं गर्द आलूद फर्श पर डाल दिया। ये ब्रीफ केस रॉबर्ट का है। चौहान ने नुमानी से पूछा। हाँ, उगमी सीट के नीचे पड़ा था, साथ ही रस्सी भी थी, इसलिए उठा लाया कि अब उसे बांधना भी तो है। नुमानी ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, इसे इस तून के साथ बांधो, मैं इस ब्रीफकेस का जायज़ा लेता हूँ। चौहान ने कहा और नुमानी ब्रीफकेस चौहान को देकर सिद्दीकी की तरफ बढ़ गया। वो दोनों ही इस मिशन में चौहान को अपना चीफ तस्लीम कर चुके थे, क्योंकि एक लिहाज से ये मिशन चौहान के जहन का ही नतीजा था, वरना वो तो हावर के साथ ही राबेल को लेकर वापस चले जाते। ब्रीफकेस के क्लिप सिर्फ बंद थे, उन्हें लॉक ना किया गया, इसलिए ब्रीफकेस आसानी से खुल गया और चौहान उसकी तलाशी में मसरूफ़ हो गया। ब्रीफकेस में 2 जोड़े कपड़ों के अलावा एक गैर मुल्की रिवाल्वर, एक तेज़ धार हंजर और एक छोटी सी डायरी भी मौजूद थी। इसके अलावा ब्रीफकेस में बड़े बड़े नोटों पर मुश्तमिल कई गड्डियाँ भी खुफिया खानों से बाहर आ गई। ये रकम इतनी मालियत में थी कि चौहान का जहन रॉबर्ट की तरफ से और भी ज़्यादा खटक गया, क्योंकि एक साइंसदान उनके पास इस कदर बड़ी रकम की मौजूदगी आम हालात में नामुमकिन थी। बहरहाल उसने रकम की तरफ तवज्जो देने के बजाय डायरी खोली। दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा, क्योंकि डायरी में जो कुछ भी लिखे था जैसे कोई रॉबर्ट राइट हैंड में लिखे या फिर स्याही में डूबा हुआ कोई कीड़ा इन सफ़ात में रेंगता रहा हो। क्या पढ़ रहे हो चौहान? नुमानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरा मतलब है, मेरा ख्याल है मामला कुछ इससे भी ज़्यादा मशकूक है जितना समझ रहा था। ये देखो, इसके तुम्हारी मालियत की रकम और इस डायरी के तहरीर, ये यकीनन कोई कोड है और कोड भी इंतहाई नामानूस सा। नुमानी ने कहा। सिद्दीकी ने कहा और नुमानी डायरी की तरफ बढ़ा। किस कोड की बात कर रहे हो? सिद्दीकी ने भी आगे बढ़ते हुए कहा। वो रॉबर्ट को स्टोन से अच्छी तरह बांध कर लौट रहा था। ये तो कोई हादसी कोड है। नुमानी ने कहा और डायरी सिद्दीकी की तरफ बढ़ा दी। अरे ये तो X30 एक्स कोड है, बहुत
बहुत हो बड़े तवील अरसे के बाद नजर आया। सदीकी ने चौंकते हुए कहा, X30 क्या मतलब? इस बार नुमानी ने चौंक कर कहा, ये कोड बाचान की कदीम और मतरूक ज़ुबान के इशारात पर मबनी है। उसे दूसरे जंग अजीम एक खासे हल्के में लिखा गया था, लेकिन जो कि ये बेहद मुश्किल कोड है, इसे जल्द ही मुस्तरद हो गया। सदीकी ने सर हिलाते हुए कहा, क्या तुम उसे डिकोड कर सकते हो? चौहान ने कहा, कर तो सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। मेरे पास दुनिया के मारूफ और गैर मारूफ कोड के बारे में एक जामे किताब है। मैंने इस कोड के बारे में इस किताब में पढ़ा था और इसकी बहुत सी शक्लें इसके एक सफ़े पर दी गई थी। इसकी कुंजी भी वहाँ ही दी गई थी। मैंने शौक की बिना पर इस पर कई दिन मगजमारी की और थोड़ी सी शुद्ध भी हासिल कर ली, लेकिन अब मुझे पूरी तरह याद नहीं। अलबत्ता वापस जाकर किताब की मदद से हल हो जाएगा। सिद्दीकी ने कहा, ऐसा कोड कोई तरतीब याफ्ता एजेंट ही इस्तेमाल कर सकता है। मेरा ख्याल है चौहान ने अपनी जहानत से सही रॉबर्ट पर हाथ डाला। राबिल के अगवा और वापसी के पीछे वाकई कोई गड़बड़ यकीनन मौजूद है, नुमानी ने पुरहयाल लहजे में कहा, और चौहान ने सर हिला दिया। फिर उसने डायरी तो जेब में डाली और ब्रीफ केस में मौजूद हंजर और रिवाल्वर उठा लिए। रिवाल्वर का मैगजीन पूरी तरह भरा हुआ था। अगर ये तरबियत याफ्ता एजेंट है सिद्दीकी, तो फिर ये आसानी से कुछ उगलेगा भी नहीं, लेकिन मैं उसके हलक से अब सब कुछ उगलवा लूँगा। चौहान ने बड़े पुरअज़्म लहजे में कहा, मेरा ख्याल है चौहान इसे पूछ करें। हम दोनों उसका रेस्ट हाउस की दोनों सिमतों से निगरानी करें। हो सकता है उसके साथ ही अचानक आ जाए। इस तरह हम बेखबरी में मारे भी जा सकते हैं, नुमानी ने कहा, और सिद्दीकी ने भी इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, एहतियात बहरहाल फ़ायदा देती है, चौहान ने कहा, और नुमानी और सिद्दीकी दोनों तेज़ी से मुड़े और फिर उस कमरे से बाहर निकल गए। चौहान ने आगे बढ़कर स्टोन से रस्सी की मदद से बंधे हुए रॉबर्ट का पहले तो बगौर जायज़ा लिया, फिर उसने रिवाल्वर और हंजर दोनों को जेब में डाला और स्टोन के हुक्म में जाकर उसने पहले रस्सियों की बंदिश को अच्छी तरह चेक किया, क्योंकि गैरमुल्की तरबियत याफ्ता एजेंट का ख्याल सामने आने के बाद वह बेहद मोहतात हो गया था। जब उसे इत्मीनान हो गया कि बंदिशों की नोयत ऐसी है कि रॉबर्ट उसे किसी तरह भी नहीं खोल सकेगा, तो दोबारा रॉबर्ट के सामने आया और दूसरे लम्हे उसने रॉबर्ट के दोनों गालों पर यके बाद दिगरे तेज़ी से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। चंद थप्पड़ों के बाद ही रॉबर्ट के जिस्म में हरकत पैदा होने लग गई और चौहान एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद रॉबर्ट ने कराहते हुए आंखें खोल दी। चौहान खामोश खड़ा था। जैसे ही रॉबर्ट का शऊर जागा, उसकी शिद्दत और चेहरे पर शदीद हैरत के आसार नमूदार हुए। मैं कहाँ हूँ? रॉबर्ट ने शदीद हैरत भरे लहजे में कहा, उसी रेस्ट हाउस में जहाँ बकौल तुम रॉबर्ट के साथ रहते थे। चौहान ने सर्द लहजे में जवाब दिया, और तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? मैंने क्या किया है? रॉबर्ट ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हारे सारे कसूर इस डायरी में बंद है रॉबर्ट, और अगर तुम ये समझते हो कि X30 कोड को कोई नहीं पढ़ सकता, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। चौहान ने जेब से रॉबर्ट की डायरी निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, और रॉबर्ट के चेहरे पर यकलखत इस कदर हैरत छा गई कि जैसे उसे चेहरे की बजाय हज़ारों वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट का शॉक लगा हो। तक तुमने डायरी पढ़ ली? कोड तुम? रॉबर्ट इस बार बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा, और चौहान मुस्कुरा दिया। बस इतना बता देता हूँ कि तुम्हारी तरह हम भी राबेल में दिलचस्पी रखते हैं। चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बड़ी जहानत से रॉबर्ट के गिर्द अपना जाल इस तरह बुनता जा रहा था कि रॉबर्ट खुद बहुत वो सब कुछ उगल दे जो चौहान जानना चाहता है, क्योंकि अगर वाकई रॉबर्ट तरबियत याफ्ता एजेंट है, तो फिर उससे सिर्फ तशद्दुद की बिना पर मालूमात उगलवाना हादसा मुश्किल काम साबित हो सकता था। और मगर कैसी दिलचस्पी? मैं समझा नहीं। तकरीबन वैसे ही दिलचस्पी जैसे तुम और तुम्हारा हेडक्वार्टर रखता है, अलबत्ता हमारे फील्ड कदरे मुख्तलिफ हैं। चौहान ने मुबहम और गैरवाज़ेह अंदाज में जवाब दिया, मगर मैं तो साइंसदान हूँ। रॉबर्ट ने होंठ चबाते हुए कहा, और चौहान बेएहतियात तंजिया अंदाज में कह कहा मारकर हंस पड़ा। बहुत खूब। यहाँ की मुकामी ज़ुबान में से तजाहिल आरफाना कहते हैं, यानी सब कुछ जानने के बावजूद कुछ ना जानने का दावा करना। चौहान ने हंसते हुए कहा, जहाँ की मुकामी ज़ुबान? क्या मतलब, क्या तुम मुकामी नहीं हो? रॉबर्ट चौहान की तवक्का के ऐन मुताबिक बुरी तरह बौखला गया। फ़िलहाल तो मुकामी हूँ। देखो रॉबर्ट, मैंने पहले कहा कि हमें राबेल से दिलचस्पी है, तुमसे नहीं। हमारे फील्ड मुख्तलिफ मकासद है, इसलिए तुम्हें यहाँ लाकर इस पूछ गुछ का मकसद सिर्फ इतना है कि तुम हमें सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें राबेल को हिप्नोटाइज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। चौहान ने यकलख सनीदा होते हुए कहा, और रॉबर्ट को हैरत का एक झटका लगा। चौहान वाकई किसी माहिर शार्पर की तरह अपने पत्ते का एक एक शो कर रहा था। हर नए पत्ते से रॉबर्ट को पहले से ज़्यादा ज़ोरदार हैरत का झटका लग रहा था, और चौहान चाहता था कि मुसलसल हैरत के ज़ोरदार झटके देकर रॉबर्ट का जहन इस हद तक माफ़ कर दे कि वो बहुत सब कुछ उगल दे जो वो जानना चाहता था। उसे इल्म था कि हैरत के इन पे दर पे झटकों की वजह से लाजमन रॉबर्ट के मुंह से कोई ना कोई ऐसा इशारा ज़रूर निकलेगा जिसकी बिना पर वो आगे बढ़ सकेगा। ओ तुम मेरी तवक्का से कहीं ज़्यादा आगे हो। क्या तुम एक एजेंट हो? रॉबर्ट के मुंह से बेएहतियार निकला, और चौहान बेएहतियार मुस्कुरा दिया। ज़रूरी तो नहीं होता कि एजेंट किसी न किसी हुकूमत का ही हो, वैसे आमतौर पर होता तो ऐसे ही है, चौहान ने कहा। उसके एजेंट के इशारे को पकड़कर ऐसा जवाब दिया कि जिससे ये भी साबित ना हो कि वो वाकई एग्रीमेंट एजेंट है, और
हो भी सकता है। वैसे चौहान जानता था कि मुकामी ज़ुबान की इशारे की वजह से रॉबर्ट के जहन ने उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक उसे गैर मुल्की समझा और शायद उसकी कदोकामत और डेलडोल की वजह से रॉबर्ट के जहन ने यही फैसला किया कि वो एग्रीमेंट एजेंट हो सकता है। हाँ, तो तुम्हारा ताल्लुक किसी मुजिम तंजीम से है, मैं समझ गया। लेकिन तुम्हें राबिल से क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो तो एक आम सी लड़की और जड़ी बूटियों की माहिर है। रॉबर्ट ने अपने तौर पर वही दाव चौहान पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जो चौहान उस पर आजमा रहा था और चौहान उसकी बात सुनकर बे एहतियात मुस्कुरा दिया। इसीलिए तो पूछ रहा था कि आखिर इस पर हिप्नोटिज्म करने का क्या ज़रूरत थी? चौहान ने बड़े शातिराना अंदाज में रॉबर्ट का दाव उस पर ही उल्टा दिया था। तो क्या तुम वाकई नहीं जानते कि हिप्नोटिज्म का अमल क्यों किया जाता है? रॉबर्ट ने कहा और चौहान हल्का सा कहा मारकर हंस पड़ा। गुड शो रॉबर्ट, तुम वाकई हाथ से ज़हीन आदमी हो। जो शख्स हिप्नोटिज्म के मामूल को सिर्फ देख कर समझ जाए उससे पूछ रहे हो कि हिप्नोटिज्म का अमल क्यों किया जाता है? बहुत खूब, चौहान ने हंसते हुए कहा और रॉबर्ट के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। शायद वो भी समझा था कि उसका पाला इंतहाई शातिर जहन आदमी से पड़ गया है। सॉरी मिस्टर, तुम जो भी तुम्हारा नाम हो, हिप्नोटिज्म के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे मुँह से ये बात सुनकर हैरान हो रहा था कि क्या वाकई राबिल पर हिप्नोटिज्म किया गया है। रॉबर्ट भी लाशौरी तौर पर जहनी शतरंज पर मोहरे आगे आगे लगा गया था जो चौहान ने उसके सामने बिछा दी थी। वो तो मुझे तुम्हारी आंखें देखकर ही मालूम हो गया था कि इस बारे में कोई अमली तजुर्बा नहीं रखते, और अमली तजुर्बा तो एक तरफ मामूली सी शुद्ध बुद्ध भी शायद नहीं रखते, वरना मेरी आंखें देखकर ही तुम्हें इतना तो मालूम हो जाता कि मेरा उसमें कुछ तजुर्बा भी है। और बहरहाल चूंकि मैं इस बारे में माहिर नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए इस अमल के जरिए तुम्हारे जहन में झांकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हो सकता है मैं तो कामयाब हो जाऊँ अगर तुम जहनी तौर पर हमेशा के लिए नाकारा हो जाओ।